My dear students, ladies and gentlemen, let's get together intellectually, physically, emotionally to learn some more concepts of knowledge management. This is our session number 30, and we have reached at a point where I think we have fair idea which school of thought might be suitable for the environment where you might be working, or the school of thought which you like the best and would like to get it implemented in the office, in the organization, in the company where you might be given this assignment. Naturally, knowledge management has to be taken as a project, just like any other project. Top management, the middle management, everybody has to be on board, especially the knowledge workers. उस हवाले से जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रेटेजिक स्कूल ऑफ थॉट और नॉलेज मेजरमेंट और असेसमेंट, या कह लीजिए यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट एंड जापानीज स्कूल ऑफ थॉट. अच्छा, फिर जापानीज स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करते हुए प्रोफेसर नोनाका really putting a lot of emphasis on the people part. People or the knowers or the knowledge workers are the one which help the organization to gain the competitive advantage. A strategic look and a strategic pull from the market given to the organization on the basis of the unique, innovative and creative abilities and capacities of the people, of the staff, of the knowledge workers working for the organization. अच्छा, लेकिन देखिए इस मॉडल में, सी की मॉडल में पहला ही जो क्वाड्रेंट है, पहली ही जो प्रीरिक्विजिट है, वो सोशलाइजेशन है. आप में से जो स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी के हैं उस बात को समझते होंगे कि कल्चर प्लेज अ रोल, एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. एंड स्पीकिंग ऑफ कल्चर, countries, organizations, companies, they do differ. Let me just mention here that, for example, if an organization, people working together, they are highly individualistic rather than having a collective mindset. तो आप फिर मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं. People having highly individualistic culture, we like to work alone. Don't disturb me. Leave me alone. I'm doing my job. Don't disturb me. Individualistic culture, individualistic incentives, individualistic rewards, individualistic processes, individualistic systems. And there are many countries where individualistic culture at the national level and also at the organizational level you will find. अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? सोशलाइजेशन कैसे वहां पर इंप्लीमेंट होगी? आई जस्ट डोंट वांट टू सिट फेस टू फेस. इसलिए कि देखिए, सोशलाइजेशन में या ओरिजिनेटिंग बा में, इसलिए कि सोशलाइजेशन के साथ ही फिर ओरिजिनेटिंग बा का कॉन्सेप्ट प्रोफेसर नोनाका ने दिया. देयर इज नो चांस that people would sit, knowledge workers would sit, individuals would sit face to face, or they don't like to be socialized. So what should we do then? How are we going to look into the knowledge management as a project? How it's going to provide benefit to the organization? Well, this means, to begin with, it requires a cultural change, or rather than focusing on tacit, देखिए ना, सोशलाइजेशन में तो tacit to tacit knowledge transfer है. Rather than focusing on the tacit to tacit transfer, maybe you create a cyber bar
let people talk face to face through computers. But it's a challenge. How in a highly individualistic culture you can implement face to face knowledge sharing, face to face knowledge creating, originating context, originating environment. Physical environment might be difficult to begin with, but can we do it virtually? Think about it. It's a challenge. But the model which is given by Professor Nonaka, this could be one reason that why when we look to the American companies, why when we look to the UK companies, you will find mention of this organizational school of thought, or maybe Nonaka's model, not as much discussed as in the Japanese organizations or in the Asian organizations. तो मैंने इसीलिए आपको चॉइस दिया है कि once looking at which school of thought might be accepted by the top management or might be suitable for the kind of culture the company, the organization has. You come up with a knowledge management strategy. It's a challenge, you have to take it. So you can develop some systems, knowledge management systems, by incorporating and helping and delivering through the knowledge management process. Knowledge management process के लिए, for example, हम 3 process की बार बार बात करते हैं. Knowledge creation process, knowledge sharing process, knowledge application process. So, to make these 3 processes implemented in the organization, we need 3 related knowledge management systems. Knowledge creation system, or knowledge discovery system, or knowledge generation and innovation system, knowledge sharing system, which will help you to carry out the knowledge sharing process, and knowledge application system. So for आज, please get ready to learn some blend of information and communication technology to blend the knowledge management infrastructure available in the company, what kind of mechanism and routines are available in the company that you can make the knowledge management project successful. You can have these 3 knowledge management processes implemented. तो मैंने जैसे शुरू में भी अर्ज किया था कि we are focusing in this course how to use these applications, how to use these knowledge management systems by the knowledge worker to gain the advantage, to provide the benefit to the organization. अच्छा, उन knowledge management systems को develop कैसे करेंगे? We'll talk about it. What technologies are required? How can you store this knowledge and retrieve the knowledge? What kind of tools may be required? What kind of support might be required from the technology point of view? Remember, we spoke about technology support, managerial support, organizational support. And then I will also share with you what could be those knowledge management applications already available in the market, or those tools which are already available, which you can simply deploy whatever application is required for these 3 processes. Once again, what are those 3 processes? We'll be focusing upon knowledge creation, discovery, generation or innovation process, knowledge sharing process and knowledge application process. तो आज फिर हम मूव करना चाहेंगे, सिस्टम के डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे और आइंदा आने वाले सेशंस के अंदर फिर हम देखना चाहेंगे कि इन सिस्टम्स को डेवलप करते हुए कैसे ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स MIS जिनसे आप लोग फेमिलियर हैं उनसे डिफरेंट है,
फिर सिस्टम लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव में नॉलेज मैनेजमेंट की ये सिस्टम्स कैसे MIS के सिस्टम से डिफरेंट है, एंड हाउ दे प्रोवाइड बेनिफिट, एडवांटेज, कंपिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां पर टेक्नोलॉजी की, मैकेनिज्म की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और खास तौर पर IT की एप्लीकेशंस की बात हो, बहुत सारे नाम आपके सामने आएंगे। एज ए बिजनेस मैनेजर, you don't have to get fearful. These tools and applications are already available. You just have to see how you have to put it together, or maybe ask the IT department or the software engineers or the network administrators. देखिए ना, इंटरनेट तो हम सब यूज करते हैं। Every business manager is required to know how to use internet. आप ब्राउजर भी इस्तेमाल करते हैं, कभी आप गौर नहीं करते उस पर, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं ब्राउजर पर तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है जिसमें आप एड्रेस लिखते हैं, तो बेसिकली यू आर एंटरिंग इनटू टेक्नोलॉजी ना। वो ब्राउजर भी किसी ने डेवलप किया होगा। इट्स एन एप्लीकेशन टू एक्सेस द इंटरनेट। फिर उस ब्राउजर के पीछे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हम इनको TCP IP प्रोटोकॉल्स कहते हैं। VoIP का नाम आपने शायद सुना हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, हम इस कोर्स में उन प्रोटोकॉल्स की डिस्कशन, उनकी डिटेल्स के बारे में तो बात नहीं करते। एंड देन वी वुड लाइक टू एक्सेस वेबसाइट्स। Maybe we would like to get an idea what a portal is. And then how about we can develop an intranet by using the internet technologies? We can develop an intranet for our own company. अब जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो इसका मतलब फिर ब्राउजर तो वहां होगा। कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे, दिस इज योर चॉइस। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा होगा, दैट इज अगेन योर चॉइस। लेकिन इंटरनेट को डेवलप करते हुए कोडिफिकेशन की भी बात होगी। वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, यू डेवलप वेब पेजेस। अब वेब पेज जब आप डेवलप करते हैं, HTML का आपने नाम सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात तो होगी ना। फिर अब HTML में आपने पेजेस डेवलप करने हैं या ASP पेजेस हैं, या वुड यू लाइक टू यूज XML? देन यू विल सीक द हेल्प ऑफ सम IT specialist, software engineers, web designers, web developers, database developers to get those applications attached. So your intranet should be available for the knowledge workers. इसी के साथ फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रानेट, वुड यू लाइक टू गेट योर कस्टमर। तो देखिए, टेक्नोलॉजीज, टूल्स, एप्लीकेशंस, व्हाटएवर इज अवेलेबल, द बेस्ट ऑफ द लॉट फ्रॉम द मार्केट, you can use them to develop your knowledge management system, which should provide you, facilitate you to carry out those 3 knowledge management processes. मेरा फोकस, इस कोर्स का फोकस, नॉलेज मैनेजमेंट का फोकस, नॉलेज वर्कर्स के लिए, बिजनेस मैनेजर्स के लिए यह है कि उन्हें पता होना चाहिए। फर्ज कीजिए हम नॉलेज शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ऑफ थॉट कि 4 प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे कन्वर्जन के, सीकी, सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, इंटरनलाइजेशन। मुझे जरा जल्दी से बताइए कि नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस के अंदर कौन सा कन्वर्जन ऑफ नॉलेज हो रहा होगा, या किस कन्वर्जन को आप यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली नॉलेज शेयरिंग के लिए। नॉलेज शेयरिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सीकी मॉडल में कौन सा क्वाड्रेंट आपको हेल्प करता है, और फिर उस प्रोसेस के लिए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जब आप डेवलप करेंगे तो फिर नोनाका का वो क्वाड्रेंट, सीकी मॉडल, थ्योरी ऑफ नॉलेज जनरेशन का वो कंपोनेंट आपको सिस्टम के अंदर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। मैं नॉलेज शेयरिंग की बात कर रहा हूं।
तो नॉलेज शेयरिंग के लिए आप मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे यह है कि नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या एक्सटर्नलाइजेशन हेल्प करेगी, इंटरनलाइजेशन, कॉम्बिनेशन या सोशलाइजेशन? कहां शेयरिंग हो रही है? क्या आंसर आया? आप में से जिन लोगों ने सोशलाइजेशन आंसर दिया है, दे आर राइट। शेयरिंग ही तो हो रही है, टेस्ट टू टेस्ट, फेस टू फेस, आई टू आई। दैट्स वन वे ऑफ शेयरिंग द नॉलेज। तो इसी तरह से फिर हम देखना चाहेंगे कि नॉलेज कैप्चर के अंदर, नॉलेज डिस्कवरी के अंदर, नॉलेज एप्लीकेशन के अंदर उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हुए कौन सा सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन सा मैकेनिज्म चाहिए। वी विल लर्न, आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू पुट दीज कंपोनेंट्स टुगेदर सो दैट यू कैन हैव अ KM solution. Solution is what is required. अच्छा, अभी solution को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, मार्केटिंग या सेल्स मैनेजर की और दूसरे नॉलेज वर्कर्स की आपको हेल्प की जरूरत होगी। We will talk, we will learn, we will see how systems and applications needs to be developed. इसका मतलब यह है कि we are going to focus on the process approach of knowledge management. Knowledge creation process, knowledge sharing process, knowledge application process. ये तीन तो आपको याद भी रखने हैं, यूज भी करने हैं, इंप्लीमेंट भी करने हैं, और इन्हीं के लिए सिस्टम भी डेवलप करना है। मैं दरमियान में कई प्रोसेस छोड़ भी रहा हूं, नॉलेज कैप्चर प्रोसेस, नॉलेज स्टोरेज प्रोसेस। लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव में एज ए नॉलेज वर्कर आपको इन तीन प्रोसेस का तो इल्म होना चाहिए। दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर दोज solutions which can help us, which can provide benefit, which can give a competitive advantage, a solution which can give a competitive advantage, which can help to gain a competitive advantage by the company in the free market, in a global world, which can make the customer not only satisfied but loyal and committed, which can make the knowledge workers having higher expertise. It can enhance their knowledge level, their learning level. तो आइए फिर देखते हैं कि इन solutions को develop करते हुए how are we going to go about, how we are going to use information and communication technology, what kind of mechanisms would be required, what kind of infrastructure would be required. Knowledge management solution की जब हम बात करते हैं, it means it refers to the variety of ways in which KM knowledge management can be facilitated. Solution का मतलब ये है कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा ब्राउजर, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो हमें नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने में फैसिलिटेट कर सके। दैट इज द काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी आर लुकिंग फॉर। इसका मतलब यह हुआ कि फिर नॉलेज मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच विल बी आइदर इन्वॉल्व और रिलेटेड टू नंबर 1 क्रिएशन ऑफ नॉलेज, डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज, इनोवेटिंग और जनरेटिंग न्यू नॉलेज। एक ही किस्म की एक्टिविटी है, उसके नाम मुख्तलिफ है। आप उसको नॉलेज क्रिएशन भी कह सकते हैं, उस प्रोसेस को नॉलेज डिस्कवरी, दैट इज ऑल्सो डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज, जनरेटिंग न्यू नॉलेज, इनोवेटिंग न्यू नॉलेज। तो ये प्रोसेस जो है, इसको डील करने के लिए फिर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको चाहिए, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से मैकेनिज्म, किस हेल्प की आपको जरूरत होगी। नंबर 2, द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कैप्चरिंग द नॉलेज। आपके पास एक्सपर्ट हैं, मास्टर्स हैं, सीनियर लोग हैं, आपको उनका टेसिट नॉलेज कैप्चर करना है। अच्छा, वो कोई बॉल की तरह से थ्रो तो नहीं करेंगे ना। एंड देन सीनियर पीपल आर डिफिकल्ट टू इवन सम टाइम टू टॉक टू। Remember last time in the last session we were talking
Why should I share? There might be resistance. Capturing the knowledge. अच्छा, जब आप कैप्चरिंग द नॉलेज की बात कर रहे हैं, फिर उसमें स्टोरिंग द नॉलेज भी आ जाएगी, रिट्रीविंग द नॉलेज भी आ जाएगी. टेक्निकल कंपोनेंट इसमें ज्यादा है. मेमोरी की बात है, नेटवर्क्स की बात है. मोर और लेस इट इज हार्डवेयर ओरिएंटेड, हार्डवेयर साइड. लेकिन नेचुरली व्हेन यू आर कैप्चरिंग द नॉलेज, देयर माइट बी सम मैकेनिज्म व्हिच यू माइट बी यूजिंग. इंटरव्यूइंग टेक्निक, nominal group technique. What techniques are being used, for example, when you are capturing the knowledge of decision making? तीसरी activity कौन सी है? Sharing. Alright? When your knowledge sharing process is on, you want to develop a knowledge management sharing system or knowledge sharing system. Once again, what technology, what tools, what mechanism would you like to use? You should use that you can facilitate the knowledge sharing process. चौथी बात है applying the knowledge, application the knowledge, using the knowledge. How you will make sure that the workers, the staff member in the organization use and apply and come up with the new product design, improvement in the process, improvement in the culture. इसका मतलब ये हो गया कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए what we are looking is a cost-effective fashion, in a cost-effective way, we would like to see the impact of knowledge and the benefit of knowledge on the company's goals achievement. Company के financial goal, company के customer satisfaction के goals, company के process improvement के goal, company के even learning of the employees, innovation in the employees के goal. Depend करता है आपके goals, targets क्या हैं, फिर उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, KPIs क्या है, how are they being achieved. So we're looking towards knowledge management and the processes of knowledge management and developing these systems so that in a cost effective fashion, remember the price should be cheaper, quality should be better, delivery should be faster. यही तीन बातें हम करते हैं ना ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में. Once again, China factor. Cost should be lower, quality should be better, delivery should be faster. How can we do it? And how can we achieve the company's goal? In other words, we like to get benefits of knowledge for the organization. But take a look, what are the benefit of the organizations? Faster innovation, shorter cycle of design improvement. Maybe every month, maybe every 6 months, maybe every quarter. There used to be a time कि जब 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान में डिजाइन चेंजेस बड़ी स्लो हैं. थिंक अबाउट इट. आई रिपीट, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान में डिजाइन चेंजेस बड़ी स्लो हैं. इट टेक्स years. But on the other hand, look at the fan industry. Take a look on the air conditioning industry. Take a look on the microwave and electronic goods. Not to speak of the mobile phones. हर महीने ही डिजाइन नया, नई इंप्रूवमेंट, फास्टर इनोवेशन. अच्छा, जब हम फास्टर इनोवेशन के अंदर नॉलेज तो इन्वॉल्व है ना. फास्टर इनोवेशन के अंदर आप मुझे बताइए, द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोवाइडिंग द मार्केट with a innovative product faster than the competitor, would that have a better and a larger market share or not? खुद सोचिए. A company, गारमेंट सेक्टर, हम पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पर अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर में टेक्सटाइल का कंपोनेंट खासा है. मैं कहना ही चाहता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ए कंपनी विच इज प्रोड्यूसिंग शर्ट्स एंड चेंजिंग इट्स डिजाइन ऑन ए वेरी फास्टर स्केल. Now design could be color design, design could be fabric design, design could be the style of the shirt.
There are so many things. We're talking about changes in the design. And see, the companies in Pakistan, they're doing a very good job. So when design is changed, the style is changed, the color is changed, and you are providing to the market faster, certainly you get a competitive advantage. Organizational benefit, दूसरा क्या है? Improved customer service on the basis of developing maybe a customer relationship system, on getting the feedback from the customer. अच्छा, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर से फीडबैक लेने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, आपने कोई कार्ड ही उसके अंदर नहीं डाला, आपने उसको फोन कॉल ही नहीं की, आपने कभी उनके साथ रिलेट ही नहीं किया, हाउ आर यू गोइंग टू प्रोवाइड देम विद एन इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस? ठीक है, खरीद तो वो शर्ट ही रहा है, बट लुक एट मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान बाइंग ए शर्ट, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू सर्व यू बेटर by relating with you. And they have their own mechanisms. Number 3, reducing the knowledge loss. They're coming up with those mechanisms, HR policies, career development plans. They don't want to lose the knowledge in the heads of the knowledge worker. That's again a benefit to the organization. आप ही कहेंगे जी कि turnover low है. Yes, that's right, turnover low है. लेकिन टर्नओवर लो रखने के लिए कुछ ना कुछ तो एचआर की पॉलिसीज के अंदर आपको ऐसी इंप्रूवमेंट करनी होगी कि जो नॉलेज वर्कर्स को एड्रेस कर रही हो. लेट मी शेयर हियर माय ओन एक्सपीरियंस. वेरी रिसेंटली, गोइंग इनटू अ कंसल्टिंग असाइनमेंट, आई हैड टू कंडक्ट पार्ट ऑफ इट, अ ट्रेनिंग, एंड आई वाज सरप्राइज्ड माई सेल्फ डिस्कसिंग विद देम how to motivate knowledge workers. I was discussing a theory, आपने भी पढ़ी होगी, need for power, need for achievement, need for affiliation, need theory. In the past, I used to see कि 50% students, 50% managers, जब मैं उनसे इंटरएक्टिविटी के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू उनकी डोमिनेटिंग नीड की एनालिसिस हम करते थे, तो पता ही चलता था कि many people would like to have more power to get their objectives achieved. But believe me, last week I was surprised to see, out of a batch, out of a group of 22 students, 22 managers working in different companies, there were hardly 3 who had their dominating need of power. More than 15 managers, they had their dominating need for achievement, intellectual achievement, career achievement, something which can enhance their intellectual intelligence. Isn't this surprising you? That's what we are looking 21st century. That the managers, the workers, the staff members, the technicians, they would like to learn new technology. They would like to move on to see how new gadgets can be used to make their process, to make their product more innovative, more knowledge friendly, more knowledge based. How can that be possible? This can only be possible when the people working there, they have this need for achievement. देखिए, need for power भी चाहिए. Power चाहिए to get your messages, routines, directives implemented. लेकिन need for achievement, I want to achieve something. I want to achieve something in my career. That is what we are talking, the how to reduce the knowledge loss. Knowledge workers take care of their career. If the HR policy would be aligned, they will provide their unique resource for the sake of organization, organizational benefit. और आखिरी बात हम कर रहे हैं organizational benefit के perspective में productivity performance. Naturally, when the productivity goes up, it is directly related with the profitability. It is directly related with revenue. It is directly related with cost savings, cycle time reduction. बहुत सारे phases हैं productivity improvement के. All right. So if that's the case, we know the importance and the impact
and the benefit of knowledge on the organization, then let's look at KM solutions, KM systems. How can we go about it? What technologies will be required? Is it available? If not available, how can we make the management ready, acquire that technology, to bring that technology so that we can have a competitive advantage in the market? अगर नहीं वो टेक्नोलॉजी आएगी और आपके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, देखिए आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लूम की, टेक्सटाइल सेक्टर लूम की, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वीविंग की, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी स्पिनिंग की, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कलरिंग की, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग की. आई एम सॉरी, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, South America, Australia may not buy your product. You are not familiar with the fashion trends in their country. Familiar कैसे होंगे? You don't have the data. You don't have the information. So think about it. To stay competitive in the market, how can you use these knowledge-based systems for the advantage? So in other words, to develop these knowledge management systems, once again, Professor Nonaka ने भी कहा था, knowledge resources. कौन से knowledge resources? वहां हमने बात की थी knowledge assets की. Knowledge resources. These are the resources we refer not only to the knowledge which is currently possessed by the individuals or the organization. Presently possessed. नहीं. But also to the knowledge which can potentially be obtained, maybe at the basis of some cost, from other individuals or from other organizations. मैंने सर अर्ज किया था ना, you need a new tool, you need a new database system, you need a new browser. May it be an open source browser, but if you need it from another organization or maybe from another individual, open source community के अंदर तो देखिए सर्च इंजन जो है उनका वाइडली अवेलेबल है. मैंने नाम बताया था आपको, जरा बताइए क्या नाम है उस सर्च इंजन का जो ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव में. अच्छा, बाय द वे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कुछ याद आया? ठीक है, आप आईटी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप में से कुछ आईटी की भी हो सकते हैं. लिनक्स बेस्ड. अब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सर्च इंजन फ्रीली अवेलेबल है, मैंने नाम उसका बताया हुआ है आपको, रिकॉल कीजिए, Moodle. Many communities around the world, they are using this search engine. You can customize it for your organization. तो देखिए, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इन सिस्टम्स को या किसी एक सिस्टम को, मैं तो 3 की बात कर रहा हूं ना, क्रिएशन सिस्टम, शेयरिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम. टू बिगिन विद, मे बी यू लाइक टू डेवलप अ नॉलेज शेयरिंग सिस्टम. कोई मीटिंग रूम है, कोई ऐसा कैफेटेरिया जिसमें एक कॉर्नर जिसमें लोग बैठ के कंपनी की रूटीन्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स, कस्टमर के बारे में गुफ्तगू करें खामोशी से. कोई ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है. लेकिन अब ये रिसोर्सेज हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक मैकेनिज्म के तौर पर अवेलेबल होने चाहिए. अगर नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगी. तो नॉलेज रिसोर्सेज प्रेजेंटली कौन से अवेलेबल हैं? आप दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अगले 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप हासिल कर सकते हैं. लेकिन जब हम नॉलेज मैनेजमेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 लेवल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सॉल्यूशंस. जरा से गौर से इस हायरार्की को देखिएगा, मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूं. कौन से प्रोसेस हैं? हम 3 की बात करते हैं बार बार. चौथा आप उसमें कैप्चर और स्टोरेज को शामिल कर लेंगे तो 4 हो जाएंगे जनरली, लेकिन 3 तो आपको याद रखने हैं. इन प्रोसेस के लिए वो 3 या 4 सिस्टम होंगे, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. और ये जो सिस्टम है, इनको कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा मैकेनिज्म और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा होगा. दैट्स व्हाट वी हैव हियर. नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स,
knowledge management mechanisms and technologies and knowledge management infrastructure. Let's take a look. हमारा फोकस तो नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस पर है. जैसे आप फर्ज कीजिए डिसाइड करते हैं टू बिगिन विद कि जी नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस को हम कंपनी ए ऑर्गेनाइजेशन XYZ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. ऑलराइट, दैट मीन्स you need a knowledge management system which should help you, facilitate you the knowledge sharing process. You need a knowledge sharing system, right? अच्छा, अब knowledge sharing system develop और implement करने के लिए या develop और deploy करने के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज चाहिए? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन. जनरली हम इसी की बात करते हैं. वी आर डीलिंग विद डाटा एंड इंफॉर्मेशन. कौन से मैकेनिज्म चाहिए, क्या मैकेनिज्म होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा. अभी हमने सिस्टम को डेवलप करते हुए सिस्टम लाइफ साइकिल की तो बात ही नहीं की, वो भी करेंगे. लेकिन लेट अस से कि सारे प्रोसेस आप अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, एक कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वो सिस्टम आपको डेवलप करना होगा. उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज और कौन से मैकेनिज्म और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, इसकी नो हाउ आपको होनी चाहिए. मैं आपसे यह तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको उनके नाम, जैसे मैंने अभी कहा ना ब्राउजर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्राउजर मार्केट में अवेलेबल है. अच्छा, फिर ये जो अवेलेबल है, देखिए ना, आपको मार्केट का अंदाजा तो होना चाहिए ना कि आप एक चीज डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें कंपोनेंट जो आपको चाहिए, विच वन इज अवेलेबल एट व्हाट कॉस्ट, एंड देन आपकी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी का, वुड दैट सपोर्ट दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो उसकी फिजिबिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी. Knowledge management systems which are going to help you to develop those, to implement those, to make those process facilitated for knowledge workers is basically an integration of technologies and mechanisms which are developed to support that knowledge management process. मैंने कहा था ना कि knowledge creation process को support करेगा knowledge creation system. Knowledge शेयरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करेगा नॉलेज शेयरिंग सिस्टम. नॉलेज एप्लीकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करेगा नॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम. ठीक है, मैंने दरमियान में से नॉलेज कैप्चर और स्टोरेज को निकाल दिया. नाउ फॉर नॉलेज क्रिएशन सिस्टम, फॉर नॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम, फॉर नॉलेज शेयरिंग सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मैकेनिज्म्स यू रिक्वायर. We'll talk about them. Here is what we are talking. Let's take a look once again. To take care of the knowledge creation process, देखिए आपके लिए सॉल्यूशन मिल रहा है यहां. सी की मॉडल को ज़हन में ले आइए. इनका कहना यह है कि नॉलेज मैनेजमेंट के डिस्कवरी या क्रिएशन या जनरेशन या इनोवेशन प्रोसेस को हेल्प करने के लिए सी की मॉडल का कॉम्बिनेशन प्रोसेस या सब प्रोसेस कह लीजिए और सोशलाइजेशन सब प्रोसेस विल बी हेल्पिंग यू, फैसिलिटेटिंग यू. कैसे? लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन. सीकी में सी था ना, कॉम्बिनेशन. क्या चीज थी कॉम्बिनेशन में? क्या उससे नॉलेज डिस्कवर हो रहा है, नॉलेज क्रिएट हो रहा है? रिकॉल कीजिए, कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे थे? आइदर वी वर यूजिंग अ ग्रुप मीटिंग, we were talking about fax machine where you can receive faxes from different group members, what they have written. We were talking about telephone, we were talking about maybe internet, computers, technologies. कौन सा बात था ये कॉम्बिनेशन में? साइबर बॉग. तो जब आप साइबर बॉग की बात कर रहे हैं तो ईमेल को एक्सेस करने के लिए फिर ईमेल का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए. उसके बगैर तो आप ईमेल एक्सेस नहीं कर सकेंगे ना. बल्कि मुझे कहने दीजिए कि ईमेल का फिर कुछ सर्वर होना चाहिए. टेक्नोलॉजी आ गई ना. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप कहेंगे जी हम जो
फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वर्स अवेलेबल हैं. अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके कई सर्वर्स हैं. हम उनको एक्सेस कर लेते हैं जी, हमने ईमेल एड्रेस, लेकिन सर्वर तो है ना किसी ने वो सर्वर तो आपको प्रोवाइड किया है, जहां आपका अकाउंट है, जहां आप ब्राउजर के जरिए से उसको एक्सेस करते हैं. अच्छा, फिर आपको इंटरनेट भी चाहिए, इंटरनेट के लिए ब्राउजर चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, फिर उस बैंडविड्थ के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन का कोई इक्विपमेंट चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, टेक्नोलॉजीज. तो कम्बिनेशन प्रोसेस तो हो रहा है, उस कम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू नॉलेज क्रिएशन भी हो रहा है. लेकिन नॉलेज क्रिएशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से मैकेनिज्म आपको चाहिए. अच्छा, फिर देखिए सोशलाइजेशन में भी टेसिट टू टेसिट नॉलेज क्रिएट हो रहा है. कैप्चरिंग प्रोसेस, एक्सटर्नलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन में आप नॉलेज को कैप्चर कर रहे हैं. कैसे? एक्सटर्नलाइजेशन प्रोसेस जो था प्रोफेसर नोनाका का मॉडल, उसमें क्या हो रहा था? नॉलेज में कैप्चर हो रहा है. व्हाट वाज एक्सटर्नलाइजेशन? उसको कॉल कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए. व्हाट इज एक्सटर्नलाइजेशन? इट वाज द कन्वर्जन ऑफ टेसिट नॉलेज इनटू एक्सप्लिसिट नॉलेज. आपने डॉक्यूमेंट लिख लिया, आपने रिपोर्ट तैयार कर ली, आपने वेब पेज बना लिया, कागज के ऊपर आ गया, सॉफ्ट कॉपी आ गई, हार्ड कॉपी आ गई. एक्सटर्नलाइजेशन. अच्छा, फिर ये तो कैप्चर के लिए समझ में आता है. अब जब आपने सॉफ्ट कॉपी बना ली तो वो सॉफ्ट कॉपी जो है आप सारे नॉलेज वर्कर्स को आप सर्कुलेट कर लीजिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको सर्कुलेट कर लीजिए. आपने उसको कैप्चर तो कर लिया ना. अच्छा, इंटरनलाइजेशन में कैसे कैप्चर हो रहा है, ये जरा बताइए मुझे आप. इज इंटरनलाइजेशन हेल्पिंग यू टू कैप्चर द नॉलेज? कैसे? व्हाट इज इंटरनलाइजेशन? हमने ये कहा था प्रोफेसर नोनाका का मॉडल सीकी. इंटरनलाइजेशन का मतलब ये है कि वट एवर हैज बीन नाउ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, वट एवर हैज बीन डिसाइडेड एज ए पॉलिसी, वट एवर हैज बीन डिसाइडेड एज ए रूटीन, I would learn to do my job in future accordingly. I will capture the knowledge written on a piece of paper, the knowledge written on a web page, the knowledge written as a best practice, the knowledge declared as a policy manual. I'll capture in my mind. I'll capture in my heart. Capture. देखिए, सॉफ्ट कैप्चर भी है, हार्ड कैप्चर भी है, और एक्सटर्नलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन के दोनों प्रोसेस कैप्चर को हेल्प करते हैं. शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो वंस अगेन इट इज सोशलाइजेशन. मैंने पहले भी बात की. एक्सचेंज, अब आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, डेटा एक्सचेंज करना है. डू यू नीड ए डेटाबेस सिस्टम? थिंक अबाउट इट. डू यू नीड समथिंग टू कम्युनिकेट विद? Do you need a bandwidth? Can you exchange through audio conferencing? Can you exchange through phone? तो एक्सचेंज के लिए फिर आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मैकेनिज्म भी चाहिए. ठीक है ना? ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए टेक्नोलॉजी. उसमें कैमरा होता है, उसमें स्क्रीन होती है जिसमें दूसरे आदमी की तस्वीर आ रही होती है, कैमरे से आपकी तस्वीर उसको नजर आ रही होती है. उसमें ऑडियो का सिस्टम होता है, उसमें एक नॉइज प्रूफ, साउंड प्रूफ कोई मीटिंग प्लेस होती है. एंड ऑफ कोर्स देन यू नीड अ बैंडविड्थ. हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट? और इसी तरह से जो नॉलेज एप्लीकेशन प्रोसेस है, वी आर टॉकिंग हियर ए मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्शन, ए मैकेनिज्म ऑफ रूटीन. देखेंगे हम इसे डिटेल में. व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्शन एंड रूटीन? नॉलेज क्रिएशन एंड डिस्कवरी. दिस मीन्स इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज. न्यू टेसिट नॉलेज और न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज फ्रॉम द डाटा एंड इंफॉर्मेशन और फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज. देखिए, सोशलाइजेशन में क्या हो रहा है? टेसिट टू टेसिट.
कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट. तो जब आप एक्सप्लिसिट ऑफ मिस्टर ए, एक्सप्लिसिट ऑफ मिस्टर बी, एक्सप्लिसिट ऑफ डिपार्टमेंट ए, एक्सप्लिसिट ऑफ डिपार्टमेंट बी कंबाइन कर रहे हैं, यू आर सिंथेसाइजिंग, मे बी सिंथेसाइजिंग prior experience, prior knowledge, prior expertise, prior know-how into a new product design, into a new process design, into a new customer relationship system, into a new supply chain system, into a new sales strategy, into a new communication strategy, into a new advertising strategy. ये सब कुछ knowledge based decisions हैं. Let's move on. Knowledge capture. Knowledge capture is defined as the process of retrieving either explicit or tacit, which resides within people, which resides within artifacts, which resides within organizational entities. How can we capture it? लोगों में, artifacts में, software systems में, organizations में. Knowledge captured might reside outside the organization. उसकी बाउंड्री के बाहर भी हो सकता है, मार्केट में हो सकता है, उनके कंसल्टेंट्स के पास हो सकता है, उनके कंपटीटर्स के पास हो सकता है, उनके कस्टमर्स के पास हो सकता है, उनके सप्लायर्स के पास हो सकता है, एंड प्रायर एम्प्लॉइज एंड प्रायर एम्प्लॉयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, न्यू एम्प्लॉइज. आपकी कंपनी में जो नया एम्प्लॉई आता है, हमारे यहां भी अब ये रिवाज होने लगा है, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में तो बड़ा एस्टैब्लिश्ड ये रिवाज है. यू स्पीक टू द प्रायर एम्प्लॉयर, जिसको आप रेफरेंस लेटर कहते हैं. हमारे यहां तो रेफरेंस लेटर जो है हम खुद ही लेके चले जाते हैं कि जी मैं ले आया हूं. बट आई हैव सीन रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम द एम्प्लॉयर. Somebody who worked in my office has gone to United States, want to work for another company. The company, the HR people in that company, writing to me, prior knowledge, कि जी उसकी थिंकिंग स्किल कैसी है, उसकी एनालिटिकल स्किल कैसी है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, वो टीम में कैसे काम करता है. दे वांट टू नो अबाउट इट, दे वांट टू कैप्चर दैट नॉलेज. और नॉलेज कैप्चर के लिए हमने बात की थी एक्सटर्नलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन की. और एक्सटर्नलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन क्या है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. यू नो व्हाट इट इज. नॉलेज शेयरिंग, दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच एक्सप्लिसिट और टेसिट इज कम्युनिकेटेड टू अदर इंडिविजुअल्स फेस टू फेस, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अब फेस टू फेस टेसिट होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेल टेसिट भी है, एक्सप्लिसिट भी है, दोनों ही है. आपने पावर पॉइंट की स्लाइड दिखा दी, वो एक्सप्लिसिट होगी. आपने रेवेन्यू की बार चार्ट दिखा दिया, आपने सेल्स का बार चार्ट दिखा दिया, एक्सप्लिसिट होगा. What you are talking and speaking, your body language is tacit. It may take place across individuals, across groups, across department, across organizations. अब ये सिस्टम अगर आपने डेवलप करना है, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना, ये सिस्टम अगर आपने डेवलप करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कौन सी एप्लीकेशन चाहिए होंगी, कौन सी मैकेनिज्म चाहिए होंगे कि आप लोगों से भी बात कर सकें, ग्रुप से भी बात कर सकें, डिपार्टमेंट से भी बात कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर सकें. नॉलेज इज शेयर्ड एंड नॉट रिकमेंडेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन नॉलेज. नॉलेज इज जस्ट शेयर्ड. और आखिरी नॉलेज प्रोसेस आज के सेशन के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉलेज एप्लीकेशन. उसमें याद हमने कहा था उसके सब प्रोसेस एंड डायरेक्शन, एंड दूसरा कौन सा अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, रूटीन. तो नॉलेज एप्लीकेशन का सिस्टम जब आपको डेवलप करना है तो नॉलेज एप्लीकेशन में जो डायरेक्शन का सब प्रोसेस है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स पोजेसिंग द नॉलेज डायरेक्ट्स द एक्शन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट ट्रांसफरिंग टू दैट पर्सन द नॉलेज अंडरलाइंग द डायरेक्शन. क्या मतलब हुआ इसका? एज ए डीन ऑफ ए बिजनेस स्कूल, आई रोट अ मीमो थ्रू एन ईमेल टू ए फैकल्टी मेंबर asking him to explain why he was absent in the class on Monday morning. All right? This is a direction given to a faculty member. अब मैं इस इंफॉर्मेशन को
I'm directing the action of another individual without transferring to that person the knowledge underlying this direction. मैं सिर्फ उनको डायरेक्शन दे रहा हूं, किस नॉलेज की बुनियाद पर, या किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, या किस डेटा की बुनियाद पर मैं ये डायरेक्शन दे रहा हूं, वो मैं उसको नहीं बता रहा. हो सकता है मेरे पास क्लास कोऑर्डिनेटर ने फीडबैक डाटा भेजा हो कि जी पिछले 3 हफ्ते से ये साहब मंडे मॉर्निंग की क्लास नहीं ले रहे. I'm not letting him know that I have the feedback from the class coordinator. All what I'm doing is I'm directing knowledge application. ये तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बात हो गई. बिल्कुल इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में जब आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, कुछ फीडबैक्स, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं, बट यू सिंपली गेट द डायरेक्शन. दैट्स नॉलेज एप्लीकेशन. डिजाइन की एप्लीकेशन हो सकती है, स्ट्रेटजी की एप्लीकेशन हो सकती है, मैनेजमेंट रूटीन्स की एप्लीकेशन हो सकती है, पॉलिसी की एप्लीकेशन हो सकती है. एप्लीकेशन कुड बी of any type, and the directions generally has to be given by the seniors or head of the departments or somebody who is responsible for that project. Knowledge application के perspective में दूसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे थे, सब process के routines. Routines involve the utilization of knowledge embedded in procedures, in rules, in norms which guide the future behavior. कि भाई इस कंपनी की ये नॉर्म है, ये काम इस तरह से होगा. Utilization of knowledge embedded in procedures, in rules, in norms which will guide my future behavior. Knowledge को अप्लाई कर रहे हैं ना, काम कैसे होगा. लोन को सैंक्शन करने के लिए क्या रूल्स अप्लाई होंगे, मेरे फ्यूचर भी है. डिसीजन तो मुझे करना है, फ्यूचर डिसीजन मेरा है, लेकिन रूल्स मुझे गाइड कर रहे हैं. मैं कंपनी के उस नॉलेज को अप्लाई कर रहा हूं रूटीन के अंदर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वेल, व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, रादर वी हैव लर्न टुडे इन दिस सेशन, इज फॉर नॉलेज क्रिएशन, फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर नॉलेज एप्लीकेशन. To implement these processes, we need systems. Knowledge application system, knowledge sharing system, knowledge creation system. To develop these systems, next session पे फिर हम बात करेंगे, to develop these systems, what kind of technologies, what kind of mechanisms are required, hard and soft, so that we can make these processes facilitated in the organization. So you as a business manager, you as a knowledge worker, when you are sharing the knowledge, that system should be available to you. कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सिस्टम्स मार्केट में से परचेज किए जा सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स परचेज किए जा सकते हैं, कुछ इन हाउस बिल्ड किए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, टीम लीड्स, जो भी आईटी की टीम होगी, दे विल बी हेल्पिंग यू टू डेवलप अ सिस्टम दैट दिस प्रोसेस कैन बी इंप्लीमेंटेड. थैंक यू वेरी मच for blending your business knowledge or business process knowledge and a knowledge management process knowledge with technology and technical and hard knowledge. You need to know this. Maybe you don't need to know how to develop these, but at least you need to know what is required to make this process go. Thank you very much for your attention, and I'll see you inshallah in the next session. And then I'll share with you, I'll let you know, I'll make you learn how these systems are developed. In-house or maybe purchased from the shelf in the market. Thank you very much, and I'll see you in the next session. Until then, Khuda Hafiz.